So study, today's point of study is Article 21 of the Constitution of India. Article 21, which mainly talks about the protection of life and personal liberty. And this is the, as I told you, most important article from the whole of our syllabus, but still you can see that this is the shortest article that you can find in the throughout the code. It is written as no person shall be deprived. First of all, the word no person has been written, and this represents that we are talking about citizens as well as non-citizens both. That is, no person word have been written, no citizen नहीं लिखा है. Fine. No person shall be deprived of his life and personal liberty. His life. The word life is mentioned here in a very interpretative term. Just living, taking breath, having food will not be sufficient. Just living like an animal will not be sufficient, but the life should be a life with dignity, a life without pollution, or to have a pollution-free environment, a life with proper food every day, a life with marriage, a life with privacy, life with shelter, education, health, etc. There are lot of interpretation that have been given by our Supreme Court from time to time in various judgments. So the word life will not be taken to be in its concrete sense. Instead, it will be taken to be in its interpretative term. Then personal liberty. What does this word personal liberty mean? क्या एक पर्सन को सिंपली जेल में ना रखा जाना will it be amount to be a liberty? क्या इतना ही लिबर्टी समझा जाएगा? Or the word liberty is having a much more wider area, much more wider scope. So all these things needs to be discussed in detail for this particular article. No person shall be deprived of his life or personal liberty except, now the thing is, one exception have been mentioned here, except according to the procedure established by law. It means in a normal sense, a person cannot be deprived of his life and personal liberty. But there is a situation where a person can be deprived of his life and personal liberty, that is called the procedure established by law. It means क्या हम किसी person की life से उसे detach कर सकते हैं? क्या हम person की death cause कर सकते हैं? Obviously no. Every person has the right to life. We cannot cause death of any person, but a judge, while acting in a judicial capacity, while following due procedure established by law, can sentence any person with death also. A person, can it be deprived of his personal liberty? Yes, with the due process established by law, or the procedure established by law, a person, if has committed certain offense, can be kept under imprisonment and can be deprived of his personal liberty. तो एक नॉर्मल सेंस में, जनरल में तो यही बात आती है कि एक पर्सन को आप कभी भी उसके लाइफ से और उसकी पर्सनल लिबर्टी से, उसके घूमने फिरने से, कहीं पे भी आने जाने से, उसको कहीं पे बिजनेस करने से, किसी भी तरह से आप उसे रोक नहीं सकते हैं. ही इज कंप्लीटली फ्री. लेकिन एक्सेप्शन ये आता है कि अगर लॉ ने कोई प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया है, अब ये लॉ ने जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया है, इस लॉ में आप क्या क्या इंक्लूड करेंगे, और दो टर्म्स हैं, इनके बीच में आपको डिफरेंशिएशन समझना जरूरी है, पर्टिकुलर आर्टिकल 21 के लिए. वन इज प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, what is mentioned here in our Constitution of India. Another one is due process of law. Just note down somewhere. We have to take an explanation
about the procedure established by law versus due process of law. Will it be having a same meaning or a different meaning? Due process of law. We need to take a detailed explanation between the difference between the two. That is procedure established by law and due process of law. So let us start with this one. अगर कोई एक पर्सन है, उसके ऊपर उसने मर्डर किया है या मर्डर के चार्जेस हैं, तो क्या उसके ऊपर हम जो ऑफेंस लगा रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर लॉ के थ्रू होगा? ऑब्वियसली यू विल से कि सर अगर पर्सन ने मर्डर किया है तो हम उसके ऊपर आईपीसी की सेक्शन 302 अप्लाई कर सकते हैं. फाइन, हम पर्सन के ऊपर आईपीसी की सेक्शन 302 अप्लाई कर सकते हैं. आईपीसी विल अप्लाई ओवर एनी पर्सन हु हैज कमिटेड एनी ऑफेंस और हु हैव बीन चार्ज्ड विद एनी ऑफेंस. चार्ज्ड विद, ठीक है. अब बात ये आती है कि जब पर्सन के ऊपर आपने मर्डर का चार्ज लगाया है तो पर्सन जो कोर्ट है, कोर्ट उसका ट्रायल चलाना चाहती है. कोर्ट उसके कौन से प्रोसेस को फॉलो करते हुए कोर्ट उसको अरेस्ट में करेगी, तो उसके लिए हमें एप्लीकेबल हो जाता है सीआरपीसी, which establishes or which provides about the procedure which have to be followed to charge a person with the offense and to proceed with the trial. अब ये जो पर्सन है जिसके ऊपर हमने एक चार्ज लगाया है और उसका ट्रायल चल रहा है, क्या इसे हम बस प्रोसीजर जो भी सीआरपीसी में लिखा है उसको अप्लाई करके और डायरेक्टली कन्विक्ट कर देंगे, या उसे प्रॉपर चांस मिलेगा अपना डिफेंस प्रेजेंट करने का और प्रोसिक्यूशन को चांस मिलेगा उसे प्रूव करवाने का? मीन टू से यहाँ पे प्रॉपर अपना अपना साइड प्रेजेंट करने का चांस मिलेगा. क्या उस पर्सन ने वो ऑफेंस किया है या नहीं किया है, इस बात को चेक किया जाएगा. एंड इट विल बी चेक्ड इन द लाइट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. In the light of Indian Evidence Act, whatever provisions have been specified by the Indian Evidence Act have also needs to be considered. The thing is, these three are the laws which are normally fall under the category of criminal laws, that is IPC, CRPC and Indian Evidence Act. And together with this, it provides a established law, or you can say enacted law. The procedure established by law or which have been mentioned under the enacted laws. जो पार्लियामेंट ने लॉज इनेक्ट किए हैं, उन लॉज में जो प्रोसीजर प्रोवाइडेड है, जो प्रोविजंस प्रोवाइडेड हैं, उनके अकॉर्डिंगली अगर कुछ एक्शंस लिया जाता है जिसके अकॉर्डिंगली पर्सन को उसकी लाइफ से या उसकी पर्सनल लिबर्टी से, उसकी फ्रीडम से डिप्राइव किया जा रहा है, देन इट विल बी अलाउड. एक मिसकंसेप्शन है, इसको अपने माइंड में जरूर आप लोग याद रखें. Many a times it is considered to be the procedure established by law का मतलब सिर्फ सीआरपीसी से होना चाहिए कि प्रोसीजर की बात कर रहा है तो वो प्रोसीजरल कोड में लिया जाए, बट ऐसा नहीं है. यहाँ पे वर्ड प्रोसीजर established by law has been taken in its comprehensive sense. All the laws of the land. The word procedure established by law means which law? All the laws of the land. उस कंट्री में जितने भी, जिस कंट्री की हम बात कर रहे हैं दैट इज इंडिया, इस कंट्री में जितने भी लॉज इनेक्ट हो रखे हैं, आई रिपीट द वर्ड इनेक्ट हो रखे हैं, सो ऑल द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय ऑल द लॉज इनेक्टेड विद इन आवर कंट्री विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. पहली बात. तो फिर ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब ये है जब हम इनेक्टेड लॉज के साथ में, जब हम इनेक्टेड लॉज के साथ में ऐड कर देते हैं द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को जब हम ऐड कर देते हैं तब वो बन जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को ऐड करने का मतलब है जो लॉज में, इनेक्टेड लॉज में लिखा हुआ है उसे तो फॉलो करना ही करना है. इसी के साथ में अगर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को कंसिडरेशन में रखते हुए
जज अगर कोई जजमेंट देते हैं, that will be called to be due process of law. And the thing is, in India, procedure established by law has to be considered because it is mentioned in the constitution. But due process of law is not followed in India. Instead, due process of law is followed in US. यूएस में जो कोड में लिखा है, जो इनेक्टेड लॉज में लिखा है, सिर्फ वहीं तक जज का जजमेंट रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, उससे बियॉन्ड जाके अपने प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को कंसिडर करते हुए द जज कैन गिव द जजमेंट. So the thing is, there is a difference between the two terms. However, in India also, many times in few of the judgments, the Supreme Court has given its interpretation. इस वर्ड को प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को डायरेक्टली तो नहीं लिया गया, लेकिन हमारे इन्हीं इनेक्टेड लॉज में, आई रिपीट, क्योंकि इंडिया में सिर्फ जो कंस्ट्रेंट है, जो एक बाउंड्री लाइन है, वो क्या है, इनेक्टेड लॉज की है कि इन इनेक्टेड लॉज के बाहर जाके कोई भी डिसीजन, कोई भी जजमेंट नहीं लिया जा सकता. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, फ्रॉम टाइम टू टाइम इनेक्टेड लॉज की ही लैंग्वेज को डिफरेंट वेज में इंटरप्रीट किया है और उनके डिफरेंट इंटरप्रिटेशन से अपने स्कोप का एरिया वाइड किया है, अपना जो एरिया है उसको वाइड किया है, स्कोप इंक्रीज किया है, एनहांस किया है, जस्ट थ्रू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन विद द सेम वर्ड्स एंड लैंग्वेज मेंशन इन द इनेक्टेड लॉज. अदरवाइज यूएस की, जैसा मैंने एग्जांपल आपको दिया, यूएस में जो इनेक्टेड लॉज है वो तो है ही है, प्लस साथ में आ जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का कंप्लीट फ्रीडम एंड लिबर्टी गिवन है जजेस को, उनको ऑटोनॉमी है, दैट they can follow the due process of law. तो I hope इन दोनों टर्म्स में आपके माइंड में डिफरेंस क्लियर रहेगा. Procedure established by law is a narrower term, narrow concept in which the procedure has to be taken only and only which is mentioned under the enacted laws. Due process of law means the procedure which have been specified in the enacted laws together with the principles of natural justice that has to be kept in mind. नो पर्सन को मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया, दैट इज नो पर्सन वर्ड जो लिखा है इसमें सिटीजन्स भी आ जाते हैं, नॉन सिटीजन्स भी आ जाते हैं, दोनों के लिए ये एप्लीकेबल होता है. फाइन. और इससे रिलेटेड एक केस था, एक लैंडमार्क केस है, आप इससे चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं. चेयरमैन रेलवे बोर्ड वर्सेस चंद्रिमा दास. चेयरमैन रेलवे बोर्ड वर्सेस चंद्रिमा दास. ये एक बांग्लादेशी विमेन थी. तो जब ये केस चला, इसके बांग्लादेशी विमेन के रेप से रिलेटेड ये केस था, तो इसमें ये हुआ था कि ये जो लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये सिर्फ सिटीजन्स का नहीं बल्कि नॉन सिटीजन्स पे भी अप्लाई होता है. इसमें ये वर्डिक्ट आया था कोर्ट का. और इसके अलावा कुछ अदर लैंडमार्क जजमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आप जानते हैं इसमें एक ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मैड्रास का केस है, खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है. ये काफ़ी पॉपुलर केस लॉज हैं जिनको हमें पढ़ना है, समझना है. ठीक है. एक मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है. ये सब आर्टिकल 21 से रिलेटेड लीडिंग केस लॉज हैं जिनमें टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरप्रिटेशन दिए हैं दैट इस छोटे से आर्टिकल में क्या क्या चीजें इंक्लूड की जा सकती हैं. द वर्ड लाइफ के साथ आप लिख लीजिए, ओनली लिविंग अ लाइफ लाइक अ एनिमल इज नॉट सफिशिएंट, बट द वर्ड लाइफ मीन्स लिविंग अ लाइफ विद डिग्निटी इन अ नॉन पॉल्यूटेड एनवायरमेंट. ये टर्म्स आप लिख लीजिए, लिविंग अ लाइफ विद डिग्निटी, विदाउट पॉल्यूशन, विद फूड, मैरिज, प्राइवेसी, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ. ये डिफरेंट टर्म्स हैं जो इस एक ही वर्ड लाइफ के अंदर इंक्लूडेड हैं और टाइम टू टाइम अलग अलग केस लॉज में, अलग अलग जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें दिया है.
और ये मेनली किस में इस्टेब्लिश हुआ था कि लाइफ को हमें कॉन्क्रीट सेंस में नहीं लेना है, बल्कि इसको थोड़ा सा हमें कॉम्प्रिहेंसिव नेचर में लेना है। खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, अभी भी मैंने केस लॉ एक आपको बताया, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में ये हेल्ड हुआ था, लाइफ इज मोर देन mere animal existence. Life is more than mere animal existence. All that is enjoyed by life should also be given to enjoy life. यानी कि लाइफ को एंजॉय करने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो भी लाइफ में इंक्लूड होना चाहिए. All that is enjoyed by life should also be given to enjoy life. लाइफ को एंजॉय करने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो भी दी जानी चाहिए, ये भी स्टेट की ही ड्यूटी है. अब यहाँ पे एक और बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी अराइज हुआ था, बहुत इसके ऊपर डिस्कशन हुए हैं, डिफरेंट केसेस में डिफरेंट वर्डिक्ट आए हैं. और क्वेश्चन ये था कि क्या राइट टू लाइफ में राइट टू डाई, राइट टू डेथ भी इंक्लूडेड है. अगर पर्सन को अपना जीने का अधिकार है, लाइफ का अधिकार है, तो फिर तो उसे मरने का भी अधिकार होना चाहिए, उसको अपनी डेथ चूज करने का भी राइट होना चाहिए. तो इसके ऊपर वेरियस केस लॉज हुए, वेरियस जजमेंट्स आए. सबसे पहले तो यही माना गया कि ऑब्वियसली अगर पर्सन अपने इच्छा से जी सकता है तो अपनी इच्छा से अपनी लाइफ को खत्म भी कर सकता है. लेकिन इसका काफी क्रिटिसिज्म हुआ, बिकॉज सुसाइड्स वगैरह फिर उससे इंक्रीज हो सकते हैं. तो एक ये चीज आया कि पर्सन अपनी इच्छा से जी सकता है का मतलब ये नहीं है कि वो अपनी लाइफ को खत्म कर सकता है. अपनी इच्छा से जी सकता है का मतलब ये है कि वो अपनी लाइफ को जैसे जीना चाहे, एक लेविश तरीके से लाइफ को स्पेंड करना चाहता है. वो अगर चाहता है तो संन्यास लेके साधु महात्मा बन के रहना चाहता है, वो चाहता है तो किसी कंपनी में जॉब करना चाहता है, वो पर्सन बिजनेस करना चाहता है, वो कहीं घूमना फिरना चाहता है. तो लाइफ को किस तरह से जीना चाहता है वो आता है. लाइफ जीना चाहता है या नहीं जीना चाहता ये उसमें नहीं आना चाहिए. फिर इसके बाद में तो उसके हिसाब से जो लाइफ राइट टू डेथ था वो उसमें से रिमूव कर दिया गया. लेकिन इसके बाद में सिचुएशन एक और कंट्रोवर्सी राइज हुई कि अगर कोई पर्सन वेजिटेटिव स्टेट में है. वेजिटेटिव स्टेट का मीनिंग होता है अ पर्सन इन अ कंडीशन विच इज इन अ लिविंग पोजीशन, जिसका हार्ट वर्क कर रहा है लेकिन पूरी तरह से वो हम कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में जो हम बोलते हैं कोमा की स्टेज में है, बेड के ऊपर है. और इट्स जस्ट लाइक अ वेजिटेबल, यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड इट. वेजिटेटिव स्टेट इज जस्ट लाइक अ वेजिटेबल. हम सब जानते हैं कि जो प्लांट्स और वेजिटेबल्स हैं इनके अंदर भी लाइफ होती है, दे ऑल्सो ब्रीथ एंड दे आर लिविंग. बट ये मूव तो नहीं कर सकते, मूवमेंट तो नहीं कर सकते, ठीक है. इनका मोबिलाइजेशन तो रेस्ट्रिक्टेड है, कहीं जा नहीं सकते, हिल नहीं सकते जैसे हैं. तो वही कंडीशन अगर एक ह्यूमन बीइंग की हो जाए कि पर्सन जिंदा तो है लेकिन वो पूरी तरह से एक वेजिटेबल वाली कंडीशन में आ जाए, एक जगह रखा हुआ है और वो अपने आप अपना कुछ भी एक्शंस नहीं परफॉर्म कर सकता, तो ऐसी सिचुएशन में क्या यूथेनेशिया अलाउ होना चाहिए? क्या उसे यूथेनेशिया यानी कि जिसको हम कह सकते हैं मर्सी किलिंग, ये अलाउ किया जाना चाहिए कि अगर पर्सन कई सालों से बिल्कुल वेजिटेटिव कंडीशन में है, पूरी तरह से वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम के ऊपर अवेलेबल है और उसके बिना वो एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकता, ऐसी सिचुएशन के लिए तो स्टार्टिंग में तो ये चीजें भी पूरी तरह से मना कर दी गई कि नहीं, इंडिया में हम किसी भी तरह से मर्सी किलिंग को अलाउ नहीं कर सकते. आफ्टर दैट इन द करंट सिचुएशन, द करंट सिनेरियो इज मर्सी किलिंग या फिर यूथेनेशिया जिसे हम कहते हैं वो अलाउ किया जा सकता है, लेकिन उसे भी पैसिव सेंस में अलाउ किया जाएगा, नॉट इन द एक्टिव सेंस. अब एक्टिव सेंस में यूथेनेशिया कैसा होता है और पैसिव सेंस में यूथेनेशिया कैसा होता है इसको समझना भी जरूरी है. एक पर्सन जो कंप्लीट वेजिटेटिव स्टेट में है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स के ऊपर है, अगर हम उसे कोई पिल्स या कोई इंजेक्शन, कोई ऐसा ड्रग देके उसको किल करते हैं जिस, और वी कैन से पॉइजन उसके
अंदर इंजेक्ट करते हैं जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाए, तो इसे हम बोलेंगे एक्टिव यूथेनेशिया, यानी कि पर्सन को डायरेक्टली ऐसा सब्सटेंस देके और किल किया गया, उसकी लाइफ को एंड किया गया। लेकिन दूसरा सिचुएशन है कि पर्सन को हमने दिया कुछ नहीं, बल्कि उसके सारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो थे, सपोज वो पर्सन वेंटिलेटर पे था, वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा देना, उसके बाद में ऑटोमेटिकली अगर उसकी बॉडी अपने आप को वर्क करना बंद कर देती है, यानी कि उसकी लाइफ अपने आप खत्म होती है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ पैसिव यूथेनेशिया। एक्टिव में तो क्या कर रहे हैं हम, डायरेक्टली ऐसा कोई सब्सटेंस उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं जिससे कि उसकी डेथ कॉज हो रही है। और पैसिव यूथेनेशिया में हमने डेथ कॉज नहीं की है, बल्कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम से उसके रिमूव कर दिए हैं, और उसके बाद में उसकी बॉडी जब तक अपने आप को सर्वाइव कर सकती है करेगी, अदरवाइज फिर उसकी डेथ हो जाए। तो इंडिया में एक्टिव यूथेनेशिया को तो कम्प्लीटली बैन किया गया, ऐसा नहीं किया, अलाउड किया जाना चाहिए। और पैसिव यूथेनेशिया को इसको एक्सेप्ट किया गया, पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ किया गया। इसमें भी बहुत सारे प्रोसीजर्स इस्टेब्लिश किए गए कि पर्सन का एक जो पैसिव यूथेनेशिया के लिए उसे अलाउ करना है, परमिट करना है, उससे पहले डॉक्टर्स की एक पैनल बननी चाहिए। वो डॉक्टर्स अपना रिपोर्ट प्रेजेंट करें कि ये पर्सन की लिविंग की या फिर पूरी तरह से ठीक होने की कितनी कैपेसिटी है। अगर वो डॉक्टर्स कहते हैं 99% ये पर्सन अब वापस से ठीक नहीं हो सकता, इसके रिकवर होने के चांसेस 0% है या 1% है, तो ऐसी सिचुएशन में, प्लस ऐसा देखा जाए कि ऐसा तो नहीं कि जो उसका कोई रिलेटिव है, कोई पर्सन है, कोई फैमिली मेंबर है जो इस चीज के लिए अपील कर रहा है, जो इस चीज के लिए अप्लाई कर रहा है, वो उसकी किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए ऐसा कुछ कर रहा हो, वो कंडीशंस देखी जाए, और सारी सिचुएशंस को उस कंसिडरेशन में लेते हुए ही फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया जाएगा उसके पर्सन की मर्सी किलिंग के लिए। ये कुछ चीजें हैं जो हमें इसमें ध्यान रखनी चाहिए। इससे रिलेटेड मुझे आपको कुछ 2-3 लीडिंग केस लॉज भी लिखवाने हैं जो मैं आपको कल लिखवाऊंगा, और उन केस लॉज के साथ साथ उनमें क्या वर्डिक्ट आया, 2-2, 3-3 सेंटेंस में उन केस लॉज का मैं वर्डिक्ट भी लिखवाऊंगा। वैसे तो इस आर्टिकल 21 के नहीं करके 40 to 45 केस लॉज आप देख सकते हैं, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 केस लॉज लिखेंगे विद देयर शॉर्ट हेल्ड जजमेंट। एक होमवर्क मैं आप लोगों को दे रहा हूँ छोटा सा, और जितना भी आप इसके बारे में लिख पाए लिख के आप इसे ग्रुप में शेयर करें, और आई विल ट्राई टू डिस्कस विद इन द ग्रुप, अदरवाइज बाय इन द टुमारोज क्लास। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द रिलेशन और यू कैन से इंटर रिलेशन बिटवीन आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21? I repeat, what is the relationship or interrelation between Article 14, Article 19 and Article 21? इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, बिकॉज एक जजमेंट आया था उसमें पर्टिकुलर वर्ड्स यूज किए हैं। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्डन थ्रेड, golden thread which runs amongst Article 14, 19 and 21. Describe the concept of, or what is the concept of golden thread which runs amongst Article 14, 19 and 21. तो इनका दोनों का सेम ही आंसर बनेगा। रिलेशनशिप की आप बात करें, इंटर रिलेशन की बात करें, या गोल्डन थ्रेड यानी कि एक ही धागे में तीनों आर्टिकल कनेक्टेड रहते हैं इस तरह से। तो इसके बारे में जितना भी आप लिख सकें, अगर प्रॉपर तरीके से आप इसको रिसर्च करके टाइम स्पेयर कर पाते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 100 वर्ड्स का तो होना ही चाहिए। और अदरवाइज जितना भी आप इसके बारे में लिख सकें लिख के और ग्रुप में शेयर कीजिए, विल हैव अ डिस्कशन ओवर दैट। एंड फाइनली इसके बारे में भी मैं आपको इंटरप्रिटेशन एंड एक्सप्लेनेशन कल की क्लास में प्रोवाइड करूंगा। अभी अगर आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं।